अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ द लास्ट पोइम। आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स एंड द राइटर ऑफ दिस पोइम इज़ पेब्लो नेरूदा। एंड लास्ट लेक्चर में हमने इसकी फर्स्ट 20 लाइन्स पढ़ी हैं। अब आज के इस नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लाइन 23 से पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक जो है अपने सामने रखिए, अपना कलम अपनी कापी अपने सामने रखिए और निकालिए किताब और देखिए लाइन 23 जो है। एंड वन मॉर्निंग से हम शुरू करेंगे आज। आप देखो और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम आपके सर पर है, एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम देना है, तो घर पर बैठ कर जो है खूब इसकी जो है प्रिपरेशन कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इंशाल्लाह अच्छे नंबरात लेकर फर्स्ट क्लास मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। एंड वन मॉर्निंग ऑल ऑफ दैट बर्नड, एंड वन मॉर्निंग द bonfires leaped from the earth, devouring beings, and from that moment fire, gunpowder from that moment, and from that moment blood, tugs with planes, and the Moors tugs with signet rings and duchesses, tugs with black friars blessing, came through the sky to slaughter children, and through the streets the blood of the children flowed easily like the blood of children. Jackals that the jackals would drive away, stones that the dry thistle would bite and spit out, vipers that the vipers would hate. So before reading these lines, before understanding these lines, हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा उसकी थोड़ी बहुत हम फिर से जो हैं उसके बारे में देखेंगे कि पहले जो डिस्क्रिप्शन इसने वहाँ स्पेन की बयान की पोइट ने, उसके बारे में हमने कल पढ़ा। द पोइट रिकॉल्स द टाइम when he lived in Spain. He had been sent there on a diplomatic mission. In this poem, he recalls the beauty of the house in Madrid where he lived. He makes a mention of the Spanish poets. Also, he had made friends with. The house he lived in had so many flowers in it that it came to be called the House of Flowers. Dogs and little children could be seen frolicking about in it all the time. The city hummed with activity all the time. It was surrounded with rich natural beauty. तो कल हमने देखा कि जहाँ स्पेन में के शहर यानी कैपिटल मैड्रिड में ये वहाँ रह रहा था, वह इसको एक क्वार्टर दिया गया था। तो जहाँ पर ये रहा था वहाँ की डिस्क्रिप्शन इसने कल हमने पहले लेक्चर में पढ़ी। तो आज अब देखेंगे अब क्या मामला हुआ, अब क्या जो है वहाँ पर क्या तब्दीली आई, तो क्या कुछ हुआ वो हम इन लाइन में पढ़ेंगे। और फिर से देखिए इसके कुछ वर्ड्स हैं जो मैं साथ साथ में लिखाऊंगा आपको। एंड वन मॉर्निंग ऑल ऑफ दैट बर्नड, एंड वन मॉर्निंग द bonfires. डियर स्टूडेंट्स, bonfire मीन्स बहुत बड़ी आग, बहुत बड़ी आग। लीप्ड जंपड फ्रॉम द अर्थ, devouring beings जो है devouring मीन्स यू नो निगलते हुए, swallowing. Beings means creatures, and from that moment fire, gunpowder dear students means barood. From that moment and from that moment blood. Thugs means killers, thugs means criminals. With plains and the Moors dear students, Moor जो है शुमाली मगरबी अफ्रीका में रहने वाला एक कबीला है जिसको मूर कबीला कहते, मूर्स कहते हैं उन्हें। एंड thugs with signet rings dear students. Signet rings means मोहरें, and duchess means
क्वीन जो है शाही घरानों की औरतें, ठग्स विद ब्लैक फ्रायर्स, ब्लेसिंग्स, फ्रायर मीनस मॉक, जिसको हम इंग्लिश में मॉक कहेंगे, ईसाई राहिब। तो blessings came through the sky to slaughter, slaughter means killing, जो है ज़बह करना, children, and through the streets the blood of the children flowed easily like the blood of children. Jackals there the jackals would dry away, stones there the dry thistle, THISTLE, इसको हम जो है thistle पढ़ेंगे, कांटेदार झाड़ी, and thistle would bite and spit out viper, vipers means zahrile सांप, snakes that the vipers would hate. So dear students, in these lines the poet describes how the peaceful life of Spain was spoiled one morning when suddenly big fires broke out. These fires rose high into the sky and devoured large numbers of men. From that moment it was fire and gunpowder exploding everywhere. From that moment it was blood and blood everywhere. Dangerous criminals and Moors came in aeroplanes and killed the people. There were among them rich aristocratic people and their ladies also who robbed the people and killed them. They were bandits who had the support of religious friars. They came through the sky to kill children. They killed so many children that the blood of children ran freely through the streets. Those people were jackals who could be driven away by jackals only. They were stones which even dry thistles would be afraid to bite. They were vipers whom even vipers would hate. तो हमने पढ़ा इस इन लाइन्स में हमने पढ़ा कि क्या कुछ हुआ फिर इस स्पेन में जो है शायर लिख रहे हैं इन सत्रों में, इन लाइन्स में शायर हमें बता रहा है कि स्पेन की पुरअमन ज़िंदगी में किस तरह एक सुबह कोहराम मच गया जब अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये लिपटें जो हैं आसमान में बहुत ऊंची उठ रही थीं और उसने भारी तादाद में लोगों को निगल लिया। उस वक़्त से हर जगह आग और बारूद फटने लगा, हर जगह खून ही खून बहने लगा। ख़तरनाक मुजरिम और अफ्रीकी जो है मूर कबीले के लोग हवाई जहाज़ों में सवार होकर आते और लोगों को मार कर भाग जाते। वहाँ उन लुटेरों में अमीर तबके के लोग और उनकी औरतें भी हुआ करती थीं जो लोगों को लूटते और मार डालते। इन लुटेरों और बदमाशों को मजहबी जो हैं राहिबों की हिमायत भी हासिल थी। वो हवाई जहाज़ों में सवार होकर आते और मासूम लोगों और बच्चों को मार कर भाग जाते। उन्होंने इतने बच्चे मारे कि बच्चों का खून गलियों में हर जगह बहता हुआ दिखाई देने लगा। वो लोग जालिम शिकारी थे जिन्हें सयाद जालिम शिकारी ही भगा सकते थे, लेकिन स्पेन में उस वक़्त कोई सयाद नहीं थे जो उनको भगा सकते। वो ऐसे पत्थर थे जिन्हें सूखी कांटेदार झाड़ियाँ भी काटने से डरती थीं। वो ऐसे जहरीले सांप थे जिनसे आम जहरीले सांप भी नफरत करते थे। तो ये यहाँ की ये जुल्म बयान किया जा रहा है इन लाइन्स में डियर स्टूडेंट्स। तो लेटर जो हमने कल लेक्चर में पढ़ा, तो आज हमने क्या पढ़ा कि व्हाट हैपेंड सडनली इन स्पेन। Later, there was terrible bloodshed in the country. There was a civil war. Some military generals, under the leadership of General Franco, overthrew the Republican government. They killed about 1 million innocent people. There was fire and destruction all around. Some of the poet's friends were also killed mercilessly. All these happenings left a deep pain in the poet's heart. तो ये सब चीज़ें जो हुई इन्होंने बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया इस पोइट के दिल को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने लाइन 23 से 38 तक पढ़ा, जो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, इसकी मीनिंग पढ़ी। तो इंशाल्लाह इसका और एक लेक्चर है, थर्ड लेक्चर,
उसमें हम बाकी के लाइन्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में मैं सवाल भेज रहा हूँ। मैंने पिछली पोइम है उसके साथ क्वेश्चंस को मैंने पूरा किया, वो सब मैंने भेज दिया आपको। तो आज से मैं आप इसी लेसन में आप लोगों को इसी लेसन की इसी पोइम की के क्वेश्चंस भेजूँगा थ्रू व्हाट्सएप। तो आप उनको मेंटेन करते रहो और जो है अंडरस्टैंड करते रहो। तो इंशाल्लाह कल हम इसका लास्ट इसकी लाइन इनको पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हमारी जो है हमारा जो ये सिलेबस है पोइट्री का जो हिस्सा है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारी बुक भी कंप्लीट, फिर हमें सिर्फ एक प्ले पढ़ना है, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर जो ग्रामर के कुछ मार्क्स भी हमें पढ़ने बाकी हैं वो भी पढ़ेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।